سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ آج جموں کشمیر کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز یونائٹ ہونے کے حوالے سے اب بات کرنے لگی ہیں، کیونکہ لداخ کے اندر جو کچھ پچھلے دنوں ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ لداخی پارٹیز اپنی یونٹی دکھاتے ہوئے جو لداخی شناخت اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کا تحفظ اور پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے جو انہوں نے مہم چلائی تھی اور الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی بات کہی تھی، اسی پر اب لداخی فورم کے طرز پر جموں کشمیر میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اتحاد کی گنجائش بڑھنے لگی ہے، اور اس حوالے سے مختلف پارٹیز نے اپنا اتفاق ضرور بتایا۔ اس خبر پہ ہم ضرور واپس لوٹتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج بابری مسجد ورڈک کیس کے حوالے سے آج ورڈک آیا ہے، اور اس حوالے سے 32 کے قریب جو ایکیوز تھے، جن پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے بابری مسجد ڈیمولیشن یا بابری مسجد شہادت کو لے کر انہوں نے کانسپیریسی جو ہے وہ چلائی تھی، اس میں آج سی بی آئی کی خصوصی عدالت جو لکھنؤ میں ہے نے 32 کے قریب جو ملزمان ہیں انہیں بری کر دیا ہے۔ اور ان ملزمان میں ایل کے اڈوانی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے سب سے سینئر موسٹ لیڈر تصور کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اما بھارتی، کلیان سنگھ اور جو مرلی منور جوشی ہے، انہیں بھی اب سی بی آئی کی اس عدالت نے بری کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیے کہ 90 کی دہائی میں یہ کیس یہاں پہ چلا تھا، اور اس میں ایسے لیڈران پر یہ کیس چلائے جا رہے تھے، اور حالانکہ اس جو بابری مسجد ڈیمولیشن کیس میں 2 الگ الگ طرح کے کیس جو ہے لگائے گئے تھے۔ جو کار سیوک تھے ان کے خلاف الگ کیس چل رہا تھا، اور جو یہ متعدد لوگ تھے جن میں پولیٹیکل لیڈران بھی شامل تھے، ان میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے بابری مسجد کو شہید کرنے کے حوالے سے انہوں نے اس وقت سازش رچی تھی، جس پر ان کے خلاف کیس چلایا گیا تھا، اور بڑی مدت کے بعد اس کیس پر پیش رفت ہوئی ہے۔ اور آج سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے جو خصوصی جج ہے وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے یعنی بابری مسجد ڈیمولیشن کو لے کر کوئی بھی کانسپیریسی نہیں تھی، یہ کورٹ کا ماننا ہے، جج صاحب کا ماننا تھا، اور اس وجہ سے 32 کے قریب جو اس میں ملزمان تھے انہیں آج بری کر دیا گیا ہے۔ لیکن یوٹیوب سے لے کر دوسری جو وسائل ہے یا میڈیا کے بہت سارے ذرائع ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف تصاویر جو بابری مسجد ڈیمولیشن کے حوالے سے آج بھی نظر آ رہی ہیں، مختلف فوٹوز ہیں، اس پر بھی آج جو ہے چرچائیں ہو رہی ہیں کہ کیا وہ صحیح تھے، اور جو کانسپیریسی کا کیس ہے یہ حالانکہ الگ ہے، اور جو کار سیوکوں کا کیس تھا وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے اس وقت، ان کے خلاف الگ سے کیس چل رہا ہے۔ لیکن جو کانسپیریسی کا معاملہ ہے اس میں آج عدالت نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سب سے بڑے لیڈران سمیت 32 افراد پر لگایا گیا الزام جو ہے واپس لے لیا ہے، اور ان پر کہا گیا ہے کہ یہ اب اس کیس سے بری ہو گئے ہیں۔ अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है, और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं, और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था, और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है, और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में, और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी, और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया है। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब वापस आते हैं जम्मू कश्मीर। पहले ही हमने कहा कि जिस तरह से लद्दाख में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर यूनिटी कायम हुई है, और उसके बाद उन्होंने अपने मुतालबात मनवाने के लिए दिल्ली से कहा है कि जो वो कहेंगे वही होना है, और बिलाकर दिल्ली भी मजबूर हो गई है, क्योंकि लद्दाख की पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज, सोशल, समाजी सभी पार्टीज ने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन डेट्स जो है अनाउंस किए गए थे। 16 अक्टूबर को वहाँ पर
इलेक्शन प्रोसेस चलना है, वोट डालने हैं, लेकिन उससे पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज जो लद्दाख की है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद जो उनकी डिमांड्स थी वो उन्होंने मरकजी सरकार के सामने रखी और मरकजी सरकार ने उनकी डिमांड्स पर हामी भर लिया और कहा कि इलेक्शन खत्म होते ही आपकी डिमांड्स को पूरा किया जा सकता है। और डिमांड्स यही थी कि जो जम्मू कश्मीर की तर्ज पर वहाँ पर डोमिसाइल ना दिया जाए, बल्कि उन्हें मुकम्मल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स को ज़मीन के हवाले से भी उन्हें खुसूसी इख्तियारात होने चाहिए, यानी कुछ लोगों का मानना है। हालांकि अभी इसकी तफासिल जो है वो मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन बेशतर लोगों का मानना है कि ये जो प्रोटेक्शन है लद्दाखी लोगों को वो 35A की तर्ज पर हो सकते हैं। हालांकि इस हवाले से अभी भी वजाहत नहीं की गई है कि किस तरह का क्या कुछ प्रोग्राम होगा मरकजी सरकार का भी, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी पॉइंट पर उन्होंने नई दिल्ली को अपनी तरफ माइल कर दिया है। लेकिन इस मूव के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इस बात की गुंजाइश बढ़ने लगी है कि वो भी अगर यूनाइट हो जाएंगे तो उसके बाद जो उनका मौक़िफ़ है 370 को लेकर उसको बहाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरान के साथ हमने भी बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, PDF और दीगर लोगों के साथ भी हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो भी किसी फ्रंट पर यूनाइट हो जाएंगे। हालांकि PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर पहले ही मुत्तहिद नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी उस हवाले से कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। यानी काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि कोई मीटिंग नहीं हो रही है। और अगर इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कोशिश तो की गई थी कि गुपकार डिक्लेरेशन की जो सिग्नेटरीज हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई थी और उससे पुलिस ने नाकाम बनाया था, लेकिन उसके बाद कोई कोशिश भी नहीं हुई है। जबकि PDP के बेशतर लीडरान, या हम ये कहेंगे कि महबूबा मुफ्ती के बगैर सभी तरह के पॉलिटिकल लीडर्स जम्मू कश्मीर के अंदर अब रिहा है, लेकिन न जाने इस हवाले से कोई पेशरफ्त या कोई मीटिंग क्यों नहीं हो रही है। इस पर लोग सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टीज खामोश क्यों नज़र आ रही हैं। लेकिन हमने भी कुछ लोगों के साथ बात की, मोहम्मद अकबर लोन मौजूदा MP नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, उनसे भी हमने पूछा कि क्या गुंजाइश बढ़ चुकी हैं और जो इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या रहेगा कि लद्दाख के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यूनाइट हो गई, तो आपका क्या प्रोग्राम है। उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। जहाँ तक लद्दाखियों के यूनाइट होने का ताल्लुक है, ये अच्छी बात है। वो अपने मसलों को हल करने के लिए अगर वो मुत्तहिद हो गए तो हमें उसे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग भी इसमें यूनाइट होके एक फ्रंट बनाएंगे और उसमें ये कहेंगे कि हमें दफ़ा 370 वापस दिया जाएगा और इसी तरह से हमें दफ़ा 370 के वापस लाने के लिए या 35A को रिवोक करने के लिए वापस लाने के लिए अगर वो भी उस पर मुत्तहिद होकर एक साथ ख्याल अपना इजहार करें तो इसमें क्या हर्ज है कि ये लोग भी इनको भी दिया जाएगा। क्या ये होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इस पर दे सकते हैं? क्या वो इस पर इत्तेफाक करेंगे? ये देखना है, ये उनके लिए सोचने वाली बात है। पहले तो ये देखना है क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी सियासी पार्टीज हैं क्या वो अपने पार्टी को एक तरफ मतलब उनके जो अपने पार्टी के अंदर जो उनके हैं ये अलग से, तो वो अलग छोड़ के अगर वो मुत्तहिद हो जाएंगे, मुत्तफिक हो जाएंगे, तो फिर ये देखना है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वहाँ की होम मिनिस्ट्री हमें वो चीज़ें वापस करें, जैसे कि दफ़ा 370 को वापस करें, जो हमारा बुनियादी हक है जिसके लिए हम लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे, और इनको एक न एक दिन ये वापस करें, क्योंकि ये दफ़ा 370 ही है जो हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के रिश्ते को देखा जाता है। जब आप इस रिश्ते को ही ख़त्म कर रहे हैं, दफ़ा 370 को वापस ले रहे हैं, रिश्ते को ही ख़त्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए, ये था नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़। लेकिन उसी के साथ PDF के हकीम मोहम्मद यासीन जो कि चेयरमैन है अपनी पार्टी के, उनका मानना है कि वो भी समझते हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से
यूनिटी की जो या इत्तेहाद की मिसाल कायम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगरचे वो उसमें सिग्नेटरी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो गुपकार डिक्लेरेशन की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। और उनका यह भी मानना है कि लद्दाख की तर्ज पर वो भी अगर यूनाइट हो जाए और ये वक्त की जरूरत है तो 370 को बहाल किया जा सकता है। हकीम मोहम्मद यासिन के साथ हमारे साथी फिरदौस नजार ने बात की, उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। पहले ही एक कुछ हम बड़ी पार्टियां जो है उनमें कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने जो गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बनाया है एक फोरम, तो हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं। उसमें जो आर्टिकल 370-35 के बारे में यह अच्छी बात है कि लद्दाख भी हमारे स्टेट का एक हिस्सा है। तो अगर अब यूटी वो बनी है, मगर मजमूई तौर ये एक सारी स्टेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 रीजन्स थे। तो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे थे, तो उन्होंने इस सिलसिले में सारी पार्टियाँ जो रिलीजियस और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहिद होकर मरकजी सरकार के साथ राबिता किया, होम मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने हामी भर दी कुछ चीज़ों के बारे में, जिसमें डोमिसाइल का खास मामला है और वहाँ के जॉब्स के बारे में। तो हमारी भरपूर ये डिमांड आज तक यही रही है कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 और यहाँ के जो लोकल नौजवान उनके रोज़गार के बारे में और अपनी ज़मीन जो हमारे हैं उसके बारे में जो हमें खदशात है, तो जिस तरह उन्होंने उनको मान लिया, इसी तरह हमें भी प्रेस करना चाहिए मरकजी सरकार को कि इस सिलसिले में उस तरह जिन्होंने उनके साथ हामी भर दी। तो एक बड़ा हिस्सा है हमारे स्टेट का जम्मू कश्मीर, जो इस वक्त यूटी के नाम से जानी जाती है, एक पुरानी स्टेट है। इन चीज़ों की तरफ उनको भी पहल करनी चाहिए ताकि यहाँ के लीडरशिप के साथ, यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए ताकि हम भी अमन की तरफ एक कदम आगे बढ़ सके। कुल बार बार हमने कह दिया कि यहाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे बड़ी हो छोटी हो, मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म रियासत जम्मू कश्मीर के जो हमसे हुकूक छीने गए उसके लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इसलिए कि जो डिक्लेरेशन के नाम से एक बड़ा फोरम बना है, उनको पहल करनी चाहिए। तो हम उनके साथ हैं ताकि वो शुरुआत करी। डिक्लेरेशन बनाना ही काफ़ी नहीं है कि एक नाम दिया उन्होंने, बल्कि काम की ज़रूरत है। इसलिए उनको प्रैक्टिकली सामने आने की ज़रूरत है ताकि एक मुतहिदा प्लेटफार्म बनकर हम भी एक इस पुरअमन तरीके से, कानूनी तरीके से आइन के दायरे में रहकर एक जद्दोजहद शुरू करके अपने हुकूक को वापसी के लिए काम करें। चलिए, इस सब के बीच अगर बात करेंगे पीडीपी की, क्योंकि पीडीपी की सदर अभी भी बंद है। आज सुप्रीम कोर्ट में उनका केस जेर समाअत है और कल भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 2 हफ्ते की जो मोहलत है वो जम्मू कश्मीर सरकार को दी है कि महबूब मुफ्ती को लगातार या पूरी उम्र भर उसको पाबंद सलासल नहीं रखा जा सकता है, इसलिए ऑल्टरनेट ढूंढने की बात की गई है। लेकिन जब हम गुपकार डिक्लेरेशन की बात करते हैं, जब लद्दाख की तर्ज पर एक जमहूरी तरीके से अपनी डिमांड्स को रखने की बात करते हैं, तो उस पर पीडीपी भी अभी तक खामोश नजर आ रही है। हालांकि उनकी जानिब से कुछ मीटिंग्स तो हुई हैं, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन के नाम पर अभी कोई भी मीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर जमातों की नहीं हुई है। आखिर इन्हें भी किस चीज़ का इंतजार है, यह भी देखने वाली बात होगी। हरबख्श सिंह जो कि पीडीपी के तर्जुमान हैं, उनके साथ भी हमारी बात हुई है। उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि गुंजाइश कहां पर आप देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि एक वे आउट है, जैसे लद्दाख के अंदर हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ें हो सकती है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी चीज़ के लिए मजबूर कर सकते हैं और इसके लिए क्या कुछ करना होगा। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। एक बहुत अच्छी मिसाल लद्दाख के लोगों ने कायम की, एक यूनिटी जो लद्दाख ने की, और उस यूनिटी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने डिसीजंस इमिट करने पड़े। तो इसी तरह से ये हमारे लिए एक, जिस तरह हमने गुपकार डिक्लेरेशन की बात की थी, एक यूनिटी की बात की थी, और पूरी न कि कश्मीर की, पूरी जम्मू कश्मीर की यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने मसले और अपने जो हमारे मुतालबे हैं उनको मनवाने के लिए, चाहे वो गुपकार डिक्लेरेशन हो या बाकी चीज़ें जो भी हैं।
अगर आज के दौर में अगर इस वक्त हम लद्दाख के लोगों से एक नसीहत नहीं लेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी बटे रहेंगे, जो कि एक सियासी चाल है सेंट्रल गवर्नमेंट की जम्मू और कश्मीर को अलग करने का, एक सेंटिमेंट को अलग करने का, और जो कुछ तंजीमें, कुछ लोग जो इस वक्त बाइफरकेट करने की कोशिश कहते हैं, हमने बहुत कोशिश की हमारी पार्टी ने, और उसमें शुक्रगुजार हैं बाकी पार्टियों के भी, फारूक साहब के, सजाद लोन साहब के, और हकीम यासीन साहब हैं, बाकी लोग हैं जिन्होंने उसमें पूरा साथ दिया, और गुपकार डिक्लेरेशन में मुजफ्फर शाह साहब भी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसमें, तो हमें एक मिसाल देनी चाहिए, हमें एक मिलजुल के जो ये यूनिटी है ये दिखानी चाहिए। अगर लद्दाख के लोग यूनिटी करके अपने मुतालबे मनवा सकते हैं, तो जो हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं, जम्मू की पार्टियां हैं, जम्मू के लोग हैं, हम लोग भी अपनी यूनिटी दिखा के अपने सारे मुतालबात मनवा सकते हैं। नाज़रीन, श्रीनगर का रहनावारी इलाका, शहर श्रीनगर के अंदर ही ये इलाका है और यहाँ पर भी मुख्तलिफ अफसरान की नज़र रहती है, लेकिन यहाँ पर करालियारी का इलाका है और इस करालियारी इलाके में ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम है और सड़क राब्ते का भी प्रॉब्लम है, लोगों की शिकायत है। हमारे कैमरा टीम भी वहाँ पर गई है और आज खुद हमने भी मुशाहिदा किया है, और इस मुशाहिदे के बाद हमारी भी ये कोशिश है कि इस मसले को आला हुक्काम तक पहुँचाए और जो मुतलकीन हैं, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनकी नोटिस में भी ये चीज़ें लाई जाए ताकि इसका हल हो जाए और आवाम को सहूलियत मैसर हो जाए। यहाँ के लोगों ने भी मुतअद्दिद शिकायतें की हैं, उनके साथ जब हमारी टीम ने बात की, उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये करालिया, रहनावारी और जोगी लांकर के बीच में आता है। जब से मेरे ख्याल में हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तब से इस ड्रेन में किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया, न रिपेयरिंग का न सफाई का। बहुत से इदारों में हम गए, लेकिन कोई भी इदारा टस से मस नहीं हो रहा है। हमने कितनी एप्लीकेशन डाली इदारों में, लेकिन आज तक हमारे ख्याल में कोई नहीं यहाँ आया है कि इसको सफाई करे या इसको रिपेयर करे। यहाँ पे हल्की सी बारिश आती है तो पूरे आप देख सकते हैं कि ये रोड जो पूरा फ्लो होता है पानी से, अंदर दीवारों के अंदर पानी चला जाता है, लेकिन आज तक कोई भी हुक्मरान टस से मस नहीं हुआ। बहुत से हमने अर्जी की हुक्मरानों को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज हम मजबूर हो गए मीडिया को बुलाने के लिए, प्लीज़ हमारी मदद करिए। आप देख लीजिए इलाके का क्या हाल हो गया है, बिल्कुल चल नहीं पाते यहाँ से, हल्की सी बारिश में भी। आप देख सकते हैं यहाँ से भी क्या हाल है, और आप प्लीज़ यहाँ से भी दिखा दीजिए क्या हाल हो गया है। दीवारें ख़त्म हो गई है और चलने फिरने बिल्कुल दुश्वार हो गया है यहाँ पे। जब भी हल्की सी बारिश आती है या आगे इनका पंप का फ्लो ऊपर होता है तो पूरा रोड भर जाता है। ये मेहरबानी करके हम आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं हुक्मरानों को कि मेहरबानी करके इसमें ज़रा तवज्जो करिए। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब श्रीनगर के बाद बात करते हैं बारामूला की, क्योंकि बारामूला के अंदर आज डिप्टी कमिश्नर जीएन यतू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जिला भर में जितने भी मजहबी मकामात हैं, जितने भी श्राइन्स हैं, उन्हें अब आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। और उनका मानना है कि ये जो श्राइन्स को या मजहबी मकामात को खोलने का फैसला लिया गया है, इसके लिए कंडीशन ये है कि जो SOPs है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा। ये हर तरह के श्राइन्स, हर तरह के जो मजहबी मकामात है वहाँ पर लागू रहेंगे। उनका कहना है, उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वो जब भी ऐसे मकामात की तरफ आए, इबादत की तरफ आए या श्राइन्स पर हाजिरी की तरफ आए, तो उस वक्त SOP का खास ख्याल रखें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ किसी को भी, किसी भी श्राइन में, किसी भी मजहबी मकामात पर किसी को भी रात भर ठहरने की इजाजत नहीं होगी। जीएन यतू की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ श्राइन्स के बाहर जो कुछ कुकिंग का सिलसिला जारी रहता है और उसके साथ साथ यहाँ पर मार्केट भी सजी रहती है, तो उस पर उन्होंने कहा कि मुकम्मल पाबंदी होगी और इसकी फिलहाल इजाजत नहीं होगी। जीएन यतू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अहम ज़ियारतगाहें हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, जहाँ जो है लोग न सिर्फ कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट से बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर से और मुल्क के बहुत सारी रियासतों से भी लोग आते हैं जिनका अकीदा है, और वो इन जगहों पे जो है आते हैं। ख़ास तौर से इसमें हमारा जो है बाबा ऋषि जो कि जो ज़ियारत शरीफ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे इसी तरह से बाबा शुक्रुद्दीन जो है वटलब में है,
इसी तरीके से जामाज वली साहब की ज़ियारत है यहाँ बारामूला टाउन में। और इसके अलावा जो हमारे छठी पातशाही जो के गुरुद्वारे हैं, चाहे वो उड़ी में हो, परमपिला में, या यहाँ पे बारामूला में है, या इसी तरीके से सिंहपुरा में है, और तपियाना साहब की जो है अहम ज़ियारत है जो कि गुरुद्वारा जो है वो रफ़ियाबाद में है। तो इसके अलावा देवीबल मंदिर है, या और भी जो पवित्र जगह हैं जहाँ जो ज़ायरीन आते हैं। तो इस हवाले से जो है कुछ हमने SOPs जो है वो डिवाइस किए हुए हैं, जिनके चलते हुए हम जो है जितने ज़ायरीन आएंगे इन जगहों पे उन SOPs पर उनको अमल करना होगा। कुलगाम का जिक्र करते हैं क्योंकि कुलगाम में आज ब्लॉक दिवस मनाया गया और कुलगाम के अंदर माना जा रहा है कि 11 ब्लॉक्स हैं जहां पर आज मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं, लोगों का दरबार सजा हुआ था और इस दौरान लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों से आकर जो उन्हें दरपेश मसाइल है उन्हें आला अफसरान के सामने रखा। अफसरान ने उनके मामलात सुने और उसके बाद उनके हल के हवाले से भी यकीन दहानी कराई गई है। लेकिन इतना ज़रूर आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले भी कई दरबार सजे हैं और इन दरबारों में लोगों के मसाइल सुने गए, लेकिन आज तक उनका हल नहीं हुआ है। कहीं ये रस्म तो नहीं है कि ऐसे दिवस मनाए जाते हैं और रस्मी तौर पर अखबारात की सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है, या कि फिर इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं और उनके दौरे इख्तियार में ये सब कुछ प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्योंकि अब इम्तिहान है और अब इस इम्तिहान में देखना होगा कि आइंदा किस तरह के जो काम हो जाएंगे और जो यकीन दहानियां आज लोगों को मिल रही हैं उन पर क्या जो सरकार है या सरकार के जो ऑप्शंस हैं क्या वो खरे उतरते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, कुलगाम में हम बात करते थे ब्लॉक दिवस की, लेकिन यहाँ बांडीपोरा में आज जो चुने गए 5 सरपंच और जो चेयरमैन हैं BDC के, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने बाइकआउट का भी ऐलान किया, ठीक उस चीज़ के लिए जिसका नाम बैक टू विलेज 3rd दिया गया है। उनका मानना है कि यहाँ पर ई टेंडरिंग का सिस्टम रखा गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह से अनंतनाग में रखा गया था, वहाँ पर भी ऐसे लोगों ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जब ई टेंडरिंग ही करनी है तो फिर उन्हें कौन सा इख्तियार हासिल है। तो इस वजह से यहाँ पर भी आज उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। हमारा यही मकसद है, हमने बैक टू विलेज पहला किया, लोगों ने हिस्सा लिया, हमने अपनी पूरी उसमें लड़ा ली, तो एक अच्छा प्रोग्राम रहा। बैक टू विलेज 2nd में भी हमने बहुत अपना जान दिया और अच्छा प्रोग्राम किया। इसके बाद आज हम आज जो बैक टू विलेज 3rd आया उसमें 10 लाख रुपए आए थे, तो बहुत जगह यहाँ पे ACD साहब DC साहब ने रिबन काटे हैं, काम स्टार्ट हुए, 80% काम कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर निकला है कि ई टेंडरिंग, अगर आपको ई टेंडरिंग करनी थी तो पहले हमसे काम क्यों करवाए और रिबन क्यों कटवाए, और काम अभी आप देखे ग्राउंड पे किए हैं। तो आज हम सारे सरपंच यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो हमारी बात सुने, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सरपंच एक होता है गांव में जिसके पास लोग आते हैं जो उनकी जो अपने गांव की सुनता है, एक पंच होता है अपने वार्ड में। आप उधर कुर्सियों पे फैसला करते हो और हम पे ठोसा जा रहा है जबरदस्ती फैसले। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं हम डेमोक्रेसी को उजागर करेंगे, हम ग्राउंड लेवल पर सरपंचों को पावर्स दे रहे हैं और ऊपर से हमें जुल्म हो रहा है। नज़दीक खबर करते हैं ब्रा राजवाड़ अनंतनाग की। एक पिछड़ा इलाका और यहाँ के लोगों का मानना है कि उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। पीने के लिए पानी उन्हें दस्तयाब नहीं है, बिजली का भी उन्हें प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि सड़क जो राब्ता है वो कनेक्टिविटी भी उनके पास नहीं है। और उनका मानना है कि यहाँ से एक नाला बहता है जहाँ जिसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि कोई भी उसमें गिर जा सकता है, यहाँ तक कि बच्चे यहाँ के महफूज नहीं है। वहाँ के लोगों ने भी अलग अलग तरह की शिकायतें की हैं। वहाँ और क्या मजीद मुश्किलात हैं, आइए देखते हैं। जनाब, ये नाल शेवन अमिस खतरा सैलाबुक सन कुल वुल मकले अस रोड मजबूरी यह गु विदिन डेज मन वाटर वर्कस वाले पाइप ना तथ क्या तो पाइप सैंक्शन गसित त्रायक पत निक तम वापस, मगर ये वुचन यह कर चेंज अत जंग आलूदा अम हैरजी पैदा एस्टिमेट बन सोरे क्या तम पे द्राव सुन नाज़रीन, आखिर पर एक अपील जो हम आपकी नज़र करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक खातून है जो कि एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला है। काफ़ी सारे पैसे इसको दरकार है, लेकिन घरेलू वसाइल इतने नहीं हैं कि इस बीमारी का इलाज हो सके। इस वजह से उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए लोगों तक ये अपील जो है पहुँचाने की कोशिश की, और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अपील दूर दूर तक जाए, आप तक पहुँचे, और आपके दिल भी नम हो, आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी जब आप इसकी कहानी सुनेंगे। क्योंकि इसके 2 बच्चे हैं और घर की हालत
ऐसी नहीं है कि वो इलाज कर पाएगी। इसलिए इनकी अपील है कि उन्हें मावनत की जाए, उन्हें माली मदद की जाए ताकि इसकी जान बच सके। ये है आरिफा बेगम जो कि रहती है शाठी गांव राजवाड़ कुपवारा में, यानी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है और शाठी गांव इसके इलाके का नाम है। और इन्हें पैसे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो जाए। एक मोहलिक बीमारी में, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बल्कि एक मोहलिक बीमारी में ये मुब्तला है। इसलिए हम भी इनकी तरफ से आप सबको ये गुजारिश करते हैं कि इनकी माली मावनत की जाए ताकि इसकी जान बच सके। आरिफा बस हंदवार राजवार शाठी गांव मे कोरोन ये दौद आज गई मे जवरी मे स्टार्टस ये दौद कोरोन अस कह पोस बे मे महर बे मे सोन वोन किस तित कुन लोग वन बे कुन जमीन कर और योर कह गुजारा कहन तो बस मुसलमान भाइन गुजारिश कर कि तम कर मे मदद ताकि बह गा ठीक बह रोज बचन नश। कोथा काल को तो बीमार मे गई जवरी क्या दूध छु तुम सी ब्रेस्ट तो तुम तो मदद अहन बस गुजारिश कर तम गस मे मदद कर बह रोज ठीक मे लकट लकट बच्चे। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।